سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں پیٹرول کی قیمتوں کی۔ حکومت نے مہنگائی کی آگ پر پیٹرول چھڑک دیا۔ پیٹرول ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ پیٹرول کی قیمت میں 12 روپے 3 پیسے کا اضافہ کر دیا گیا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 159 روپے 86 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل 9 روپے 53 پیسے فی لیٹر مہنگا ہو گیا۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 154 روپے 15 پیسے فی لیٹر مقرر۔ لائٹ ڈیزل آئل 9 روپے 43 پیسے فی لیٹر مہنگا۔ لائٹ ڈیزل کی قیمت اضافے کے بعد 123 روپے 97 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ مٹی کا تیل 10 روپے 8 پیسے فی لیٹر مہنگا ہو گیا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، حکومت نے مہنگائی کی آگ پر پیٹرول چھڑک دیا۔ پیٹرول ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ پیٹرول کی قیمت میں 12 روپے 3 پیسے کا اضافہ کر دیا گیا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 159 روپے 86 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل 9 روپے 53 پیسے فی لیٹر مہنگا ہو گیا۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 154 روپے 15 پیسے فی لیٹر مقرر۔ لائٹ ڈیزل آئل 9 روپے 43 پیسے فی لیٹر مہنگا۔ لائٹ ڈیزل کی قیمت اضافے کے بعد 123 روپے 97 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ مٹی کا تیل 10 روپے 8 پیسے فی لیٹر مہنگا ہو گیا۔ بات کرتے ہیں عثمان حیدر سے۔ عثمان، کہیے گا شہریوں کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ جی بالکل، اوگرا کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی سمری وزیر اعظم کو بھجوائی گئی، اور اب جو ہے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی جانب سے جو ہے وہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی منظوری دے دی گئی ہے، جس کا باقاعدہ اطلاق بھی ہو چکا ہے۔ اور اس حوالے سے شہری جو ہیں وہ موجودہ حکومت سے خاصے نالا دکھائی دیتے ہیں، جن کا یہ کہنا ہے کہ مہنگائی کی چکی میں پہلے ہی پس رہے تھے، اب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں دوبارہ سے اضافہ کر دیا گیا ہے، جس کے باعث جو ہے وہ مہنگائی کا ایک طوفان آئے گا جو کہ نہ کنٹرول ہوگا، اور جس کے چکی میں جو ہے وہ عام آدمی پس کر رہ جائے گا۔ عام آدمی کی جیب پہ پہلے ہی خاصا بوجھ تھا، جن کی تنخواہیں جو ہیں وہ کم تھیں، اور مہنگائی کا طوفان اس قدر زیادہ تھا کہ اس کا گزر بسر کرنا مشکل ہو چکا تھا، اور ایسے میں جو ہے وہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں دوبارہ سے اضافہ کیا گیا ہے، جس کے باعث اب ایک اور نیا طوفان جو ہے وہ مہنگائی کا آئے گا، جو کہ نہ تو کنٹرول ہوگا۔ اس حوالے سے شہری جو ہیں وہ اس وقت پیٹرول پمپ پہ موجود ہیں، جن کی جانب سے 12 بجے سے پہلے پیٹرول پر ڈلوانے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور اس حوالے سے پیٹرول پمپ انتظامیہ کی جانب سے جو ہے وہ پیٹرول ڈالنا بند کر دیا گیا تھا۔ میرے ساتھ یہاں پہ شہری موجود ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے۔ یہ بتائے گا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے، پیٹرول کی اب نئی قیمت جو ہے وہ 159 روپے 86 پیسے ہو گئی ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ یہ تو زیادتی کی ہے انہوں نے بہت ساری، پہلے ہی ہم اتنی مہنگائی میں پس رہے تھے، اوپر سے یہ ایک اور نیا بوجھ ڈال دیا گیا ہے۔ اس چیز کا احساس ان کو پچھلے 3-4 سال سے تو ہو نہیں رہا ہے، اور مجھے لگتا ہے آئندہ بھی نہیں ہوگا کہ عام عوام کی کیا حالت ہے اس وقت، اور ان کو سوچنا چاہیے جو کہ وہ نہیں سوچ رہے، کیونکہ ان کا عام آدمی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تو ہم جیسے مزدور آدمی سے پوچھا جائے کہ وہ کیسے گزارا کر رہے ہیں۔ یقینی طور پہ یہاں پہ موجود جو شہری ہیں ان کا یہ رد عمل ہے کہ حکومت کی جانب سے جو ہے وہ یہ دعوے کیے گئے کہ عام آدمی کو ریلیف فراہم کیا جائے گا، البتہ وہ ریلیف جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا۔ میرے ساتھ اور بھی شہری موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ آپ یہ بتائے گا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے، پیٹرول کی قیمت میں 12 روپے 3 پیسے کا اضافہ ہوا ہے، کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ دیکھیے نا، اب کہ پیٹرول کی قیمتیں زیادہ ہو گئی ہیں تو بس وغیرہ کے کرائے بھی زیادہ ہو گئے، تو غریب بندے کے لیے افورڈ کرنا مشکل ہے۔ اس کی غریب بندے کی اب کیا کہتے ہیں 500-600 روپیہ ڈیلی کی انکم ہے، وہ کیسے افورڈ کر سکتا ہے اتنا مہنگا پیٹرول؟ کسی شہر سے باہر آنا جانا بہت مشکل ہو گیا اب ہمارے لیے، مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، اس پہ کنٹرول نہیں ہو رہا۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں باہر کے کنٹری سے کچھ سیکھنا چاہیے، لیکن ہم نہیں سیکھ رہے، ہم وہی مہنگائی وہی ہر چیز ہو رہی ہے، تو اسی لحاظ سے تو مہنگائی بہت زیادہ جا رہی ہے، غریب بندہ پس رہا ہے اس میں۔ جی بالکل، یقینی طور پہ دور دراز کے علاقوں میں شہریوں کو کام کرنے کے لیے جانا پڑتا ہے، جن کی دیہڑی جو ہے وہ بامشکل 500 یا 1000 روپے ہوتی ہے، اور ایسے میں جو ہے 160 روپے 59 روپے کا پیٹرول ڈلوانا پڑ جائے تو یقینی طور پہ ان کی جیب پہ بوجھ ہوگا۔ میرے ساتھ اور بھی شہری موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ آپ یہ بتائے گا کہ پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہو گیا ہے، اس سے پہلے بھی پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کیا گیا، پیٹرول کی قیمت بڑھنے سے کیا سمجھتے ہیں اشیاء کرونوش پہ بھی فرق پڑے گا؟ ظاہر ہے سر، یہ جو عمران خان صاحب ہمارے پرائم منسٹر صاحب بیٹھے ہیں پرائم منسٹر ہاؤس میں، انہیں یہ چاہیے کہ عام شہری کی طرف دیکھیں، ان کے مسائل کو غور کریں۔ یہ جو پیٹرول کا بم عوام پہ گرا رہے ہیں، انہیں چاہیے کہ کم از کم عوام کی جو انکم ہے اس میں بھی کوئی انکریز کریں۔ عوام کی جو بیسیکلی میری ہے، میں لگا لوں یا میرے ساتھ جو بھی دوست ہیں، دیہڑی ہے نا کہ ایک جو عام ہے 700-800 روپے بندہ کما رہا ہے، تو اس میں جو 150-200 روپے کا پیٹرول ڈیلی کا ڈلوائے گا تو وہ کیا کرے گا؟ اپنے گھر والوں کو کیا دے گا، یا اپنے جیب میں کیا ڈالے گا؟ سیونگ تو ہے ہی نہیں۔
जो 3-4 साल से जो सेविंग है वो तो ख़त्म हो चुकी है। जो इमरान खान साहब कह रहे थे हमें स्टैंड होने में टाइम लगेगा, अभी ये 4 साल से स्टैंड नहीं हो पाए, ठीक है, और नेक्स्ट भी ये कह रहे हैं हमें टाइम दे। तो खुदारा हमारी जान छोड़ें, तो किसी और को आगे आने दें। हमसे अक चुके हैं आवाम से। अच्छा, बिल्कुल यकीनी तौर पे यहाँ पे मौजूद शहरियों का ये कहना है कि आमदनी 18 और खर्चा रुपया, चूँकि आमदनी जो है वो कम है और ऐसे में जो अखराजात हैं वो खासे ज़्यादा हो चुके हैं। यकीनी तौर पे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से न सिर्फ ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफा होगा बल्कि अशिया खुरोनोश का भी एक तूफान आएगा। इस हवाले से यहाँ पे मौजूद शहरी जो हैं वो यही मुतालबा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान जो हैं वो अपने इस फैसले पर नज़रसानी करें और आम आदमी को रिलीफ फराहम किया जाए, जो कि पिछली अदवार में कैंपेन के दौरान जो है वो इमरान खान की जानिब से ये दावे किए जाते थे कि 90 दिन में जो है वो महंगाई कंट्रोल की जाएगी, आम आदमी को रिलीफ दिया जाएगा, 1 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी। तो इस हवाले से यहाँ पे मौजूद जो शहरी हैं उनका यही मुतालबा है कि इमरान खान वो वादे तो पूरे नहीं कर पाए, अलबत्ता जो है वो अब इनके हाल पे रहम किया जाए और इनको जो है वो इस महंगाई की चक्की से पिसने में बचा लिया जाए। जी, पेट्रोल की कीमतें ज्यादा होने से आम शहरी को मुश्किलात का सामना है। उस्मान, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आपको बता रहे हैं हुकूमत ने महंगाई की आग पर पेट्रोल छिड़क दिया। पेट्रोल मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। पेट्रोल की कीमत में 12 रुपए 3 पैसे का इजाफा कर दिया गया, जबकि पेट्रोल की नई कीमत 159 रुपए 86 पैसे फी लीटर हो गई है। हाई स्पीड डीजल 9 रुपए 53 पैसे फी लीटर महंगा हो गया। हाई स्पीड डीजल की कीमत 154 रुपए 15 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई। अभी आपको बताते हैं डिवीजन की बड़ी इलाजगाह मसाइल की आमाजगाह बनने लगी। अलाइड अस्पताल फैसलाबाद में गजाई कमी का शिकार बच्चों का इलाज बंद। अस्पताल में खुश्क दूध और दीगर अद्वियात नायाब हो गई। माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम के तहत जिला भर में शदीद गजाई कमी का शिकार और सोकड़ापन की बीमारी में मुब्तला मरीज बच्चों के लिए अलाइड अस्पताल में वाकया वाहिद इलाजगाह मुश्किलात से दोचार है। मरीज बच्चों के लिए खुश्क दूध समेत दीगर अद्वियात नायाब हैं और इलाजगाह की तज़ीनो और आइश का मनसूबा भी ठप हो गया। गरीब मरीज बच्चों के वालिदैन प्राइवेट मेडिकल स्टोरों से अद्वियात खरीदने पर मजबूर है। कहते हैं दूध और अद्वियात बाहर से खरीदना पड़ रही है। दूध लिया दवाई नहीं आती हूँ, कचरे बाहरों ले रहे हैं, आंधे बाहरों तो मिल सन कचरे बाहर दूध मोल है हमने ते कोई दवाई दसन कल एक राती टीका भी मोल आंदा बाहर जी, दवाई भी इसनों दिती है ते दूध भी मोल लेना, जितना बच्ची पींदी पई है इतना ही लेंदे। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम डॉक्टर जाहद यूनस का कहना है सेंटर की तज़ीनो और आइश के लिए फंड मुयसर है और तज़ीनो और आइश से मुतलिक हदायत जारी कर दी है। मरीज बच्चों के इलाज मुआवजे से मुतलिक दूध और अद्वियात की खरीदारी के लिए भी हदायत कर दी है। उम्मीद है जल्द तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। एक तो प्लान है इस वक्त जिसके लिए गवर्नमेंट ने बजट दिया है, तो इनकी इस सेंटर की रिनोवेशन की जाएगी और इसमें जो है ना बच्चों का प्ले एरिया और दूसरी सारी चीज़ें जो है ना फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी और जो जो इंस्ट्रूमेंट्स वहाँ पे कम है वो भी इंशाल्लाह प्रोवाइड किए जाएंगे। डॉक्टर जाहद यूनस का मजीद कहना था कि तमाम मराकज़ सेहत में सोकड़ापन और शदीद गजाई कमी का शिकार मरीज बच्चों को बेहतर इलाज के लिए मरकजी सेंटर अलाइड अस्पताल भिजवाने की हदायत करती है। खुश्क दूध और अद्वियात की कमी का फुकदान मरीज बच्चों के इलाज के लिए मुश्किलात का बाइस बन रहा है। कैमरामैन कमर बुट्टा के साथ अज़दार हुसैन, फैसलाबाद। शोरकोट के मुख्तलिफ मेडिकल स्टोर्स पर अद्वियात का काल पड़ गया। बुखार और दर्द की मुख्तलिफ गोलियां गायब हो गईं, जबकि पैनाडोल भी नायाब हो गई। शोरकोट के मेडिकल स्टोरों पर पैनाडोल समेत मुख्तलिफ अद्वियात नायाब हो चुकी हैं, जिससे मरीजों को सख्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी, मैंने भाई को चेक करवाया था THQ में, उनको था फीवर। डॉक्टर साहब ने कहा है कि पैनाडोल ने इनको दें अभी 2 ला के। मैंने यहाँ पता किया है मेडिकल स्टोर से, 2-3 से पता किया है, नहीं मिली। फिर मैं बाजार चला गया हूँ, वहाँ पे भी किसी मेडिकल स्टोर से ना पैनाडोल नहीं मिली। शहरियों का कहना था कि शहर और गिरदुनवा के मेडिकल स्टोरों पर पैनाडोल की गोली जो कि दर्द और बुखार के लिए इस्तेमाल होती है किसी भी मेडिकल स्टोर से नहीं मिल रही। डॉक्टर्स कोरोना वायरस जैसी मर्ज के लिए भी पैनाडोल लिख देते हैं। पैनाडोल ना मिलने से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। हुकूमत को चाहिए कि अद्वियात की फरहमी को यकीनी बनाए। जो कि पैरासिटामोल 200 रुपए का पैक मिलता था पहले एक चाइना की कंपनियों का, वो अभी 400 रुपए का पैक उन्होंने वो भी कर दिया है। हालांकि ना उसकी वारंटी मिलती है, ना उसका कोई हमें ब्याज नंबर मिलता है, ना हमें उसको कोई उसके साथ कोई इनवाइस मिलती है। अगर हुकूमत ने बरवक्त अद्वियात की फरहमी को यकीनी ना बनाया तो आने वाले दिनों में मरीजों के इलाज के हालात संगीन होने का अंदेशा है। कैमरा टीम के साथ शहजाद अली, सिटी 41, शोरकोट। 18 हजारी के THQ अस्पताल में कूड़े के ढेर में पड़े कीमती इंजेक्शन किसकी मलकियत? CEO हेल्थ की अनोखी मंतक सामने आ गई। कूड़े के ढेर पर पड़े इंजेक्शन बैरूनी अनासर की मलकियत करार दे दिया।
तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल 18 हजारी के कूड़ादान में पड़े इंजेक्शन हमारे नहीं। जी हाँ, ये इंजेक्शन हैं तो सरकारी, मगर महकमा सेहत के हुकाम मानने को तैयार नहीं। सिटी 41 ने THQ अस्पताल 18 हजारी के कूड़े के पड़े ढेर पर कीमती सरकारी इंजेक्शन के मनाजिर दिखाए तो CEO हेल्थ डॉक्टर मंजूर हुसैन ने जिम्मेदारी लेने से ही इनकार कर दिया। मैंने इसी सिलसिले में MS डॉक्टर जफर हसन शाह से राब्ता किया है। उन्होंने मुझे बताया है कि ये इंजेक्शन हमारे नहीं है, किसी और के होंगे, लेकिन किसी सेंटर से या कोई ऐसा ही बंदा वहाँ जो है ना वो फेंक के चला गया है। हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। THQ अस्पताल के कूड़ा स्टैंड में मौजूद एंटीबायोटिक और दीगर इकसाम के इंजेक्शन मरीजों तक तो ना पहुंच सके, लेकिन जायदुल मियाद जरूर हो गए और कुछ इंजेक्शन 2022 और साल 2023 तक काबिल इस्तेमाल हैं, मगर अमला ने इंजेक्शन उठाकर कूड़ा क्रिकेट के ढेर पर फेंक दिए। CEO हेल्थ जंग डॉक्टर मंजूर हुसैन ने सिटी 41 से गुफ्तगू के दौरान वाक़े की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील देने का ऐलान कर दिया है। मैं एक कमेटी बनाता हूँ, वो कमेटी जो है वो सारा इस मामले का जो है ना वो छानबीन करती है। CEO हेल्थ के बुलंदोबाग दावे अपनी जगह, लेकिन कूड़ादान में सरकारी कीमती इंजेक्शन की मौजूदगी ने महकमा सेहत हुकाम की मॉनिटरिंग के दावों का पोल खोल दिया है। हुकूमत की जानिब से फराहम करदा इंजेक्शन और अद्वियात मरीजों तक पहुँचाना तिब्बी अमला की इखलाकी जिम्मेदारी भी है। ताहम THQ अस्पताल 18 हजारी के अहाते में पड़े ये इंजेक्शन अस्पताल अमला की कारकर्दगी का पोल खोल रहे हैं। अब देखना यह है कि महकमा सेहत के हुकाम दावों के साथ साथ जिम्मेदार अमले के खिलाफ क्या एक्शन लेते हैं। कैमरामैन उमर मुर्तजा के साथ अबू तुराब तुराबी, सिटी 41, 18 हजारी, झंग। तामीराती मटेरियल मजीद महंगा, खर्चे मजीद बढ़ गए। दरवाजों और खिड़कियों में इस्तेमाल होने वाला एल्यूमिनियम भी महंगा हो गया। फी मुरबा फुट कीमत 426 से बढ़कर 447 रुपए हो गई। तामीराती सामान महंगा हो रहा है, हुकाम नोटिस लें। एल्युमिनियम का तकरीबन हर जगह पे अब हो रहा है काम, लेकिन इसका हर रोज़ रेट अप डाउन हो रहा है, जिसकी वजह से छोटे डीलर जो है उनको नुकसान काफ़ी हो रहा है। अब कल का न्यू रेट लिस्ट आ रही है, वो अभी 15 से 17% इसका रेट जो है वो अप हो रहा है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जी 17% अचानक से एकदम से हम पे क्यों लागू किया जा रहा है। जिन घरों का हमने एडवांस पकड़ा हुआ है, जिन लोगों से हमने पैसे लिए हुए हैं, वो कैसे हम काम करेंगे। तनख्वाहों की अदायगी और मुस्तकिली के लिए झंग और चिन्योट में एहतजाज। लेडी हेल्थ वर्कर्स झंग डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर सरापा एहतजाज, ट्रैफिक ब्लॉक करके नारेबाजी की। तनख्वाहों की अदम अदायगी और मुस्तकिली के लिए झंग में लेडी हेल्थ वर्कर्स ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने ट्रैफिक ब्लॉक करके नारेबाजी की। लेडी हेल्थ वर्कर्स का कहना था, एक तरफ तनख्वाहें नहीं दी जा रही और दूसरी जानिब मुस्तकिल भी नहीं किया जा रहा। शुरा ने शाहिद अब्बास टोया से नोटिस लेकर इकदाम करने का मुतालबा किया है। हम 15 साल से सर्विस कर रहे हैं और हुकूमत का कहना है कि आप लोगों को निकाल के नई भर्तियां की जाएंगी और हमारी इल्तिजा है कि वो हमें ही रख के अगर और NTS जो 15 साल से सर्विस कर रही हैं वो NTS कैसे दे सकती हैं। उनकी एज इतनी ज़्यादा हो गई, एक स्टूडेंट लाइफ हो तो वो दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारी स्केल के मुताबिक हमें सैलरी दे जाएँ, ताकि जो हमारा स्केल है, जो हमारी जिस तरीके से हम काम करें, हमें सैलरी दी जाए। NTS अब हम नहीं देंगे, हमारा यही मुतालबा है कि हमें ही परमानेंट किया जाए और हमारी सैलरीज जो हैं स्केल के हिसाब से दी जाएं। IRMNCH प्रोग्राम के तहत काज़मीन ने मुतालबात की मंजूरी के लिए महकमा सेहत दफ्तर के बाहर एहतजाज किया। शुरा ने उठाकर नारेबाजी की। LHVs और ड्राइवर्स का कहना था कि हुकूमत ने महकमा खत्म करके चूल्हे ठंडे कर दिए हैं। नौबत फाको तक पहुँच चुकी, कर्ज लेकर गुजर बसर कर रहे हैं। और हम तकरीबन 10 सालों से इस प्रोजेक्ट के थ्रू काम कर रहे हैं। IRMNCH हम बहुत दूर दराज इलाकों में जाते हैं, ड्यूटीज़ करते हैं, हमें इतनी मुश्किल, हमने सेंटर चलाए हैं। अब जब हमें कुछ देने का वक्त आया तो गवर्नमेंट हमें जॉब से निकाल रही हैं, बजाय कि हमें परमानेंट किया जाए। अब कह रहे हैं कि जी इन सीटों पे नई भर्तियां की जाएंगी, NTS टेस्ट दिए जाएंगे, जबकि हम इतने सालों से ये कहाँ के रूल हो गए हैं कि हम इतने साल बाद आके NTS टेस्ट दें। हम NTS टेस्ट नहीं देंगे। मुजाहिरीन ने मुतालबात मंजूर न होने पर एहतजाज का दायरा कार वसी करने की धमकी दी है। टेक्निकल एजुकेशन के नॉन टीचिंग स्टाफ की सीटें अपग्रेड करने की मंजूरी। जूनियर स्टोर कीपर 5वें से 7वें, स्टोर कीपर 6वें से 11वें स्केल में अपग्रेड हो गया।
फाइनेंस डिपार्टमेंट पंजाब ने टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी के नॉन टीचिंग स्टाफ की सीटें अपग्रेड करने की मंजूरी दे दी है। पंजाब भर के टेक्नोलॉजी कॉलेजेस के नॉन टीचिंग स्टाफ को अगले स्केल्स मिलेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक टोयोटा कॉलेजेस के जूनियर स्टोर कीपर को 5वें से 7वें, जबकि स्टोर कीपर को 6वें से 11वें स्केल में अपग्रेड कर दिया गया है। जूनियर क्लर्क को 5वें से 11वें, कंप्यूटर ऑपरेटर को 14वें और अकाउंटेंट को 11वें से 15वें स्केल में अपग्रेड किया गया है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू फैसलाबाद में टैक्स चोरों के खिलाफ मुतहरिक टैक्स चोरी, हकायक छुपाने समेत मुख्तलिफ मामलात में 200 से ज्यादा केसेस की तहकीकात। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू फैसलाबाद टैक्स चोरों के खिलाफ मुतहरक हो गया। रवा माली साल के दौरान 200 से ज्यादा केसेस की तहकीकात शुरू की गई। केसेस में मजमूई तौर पर 1900 मिलियन रुपए टैक्स रिकवरी का हदफ रखा गया। लाइफर जोन में 116 और चनाब जोन में 44 केसेस की तहकीकात की गई, जिनमें कारपोरेट जोन के 25 और जंग जोन में 21 टैक्स गुजार शामिल हैं। FBI हुकाम के मुताबिक केसेस में शामिल अफराद ने टैक्स चोरी और हकायक छुपाकर कौमी खजाने को नुकसान पहुँचाया। उधर फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर इनकम टैक्स नादिहिंदगान के खिलाफ एक्शन 29 नादिहिंदगान के बैंक अकाउंट कर्क करके 10 मिलियन रुपए रिकवरी कर ली। शाहीन क्लॉथ प्रोसेसिंग, स्टार टेक्सटाइल, उस्मान क्लॉथ मिल, नासिर खुर्शीद पैकेजेस और पंजाब ऑयल इंडस्ट्री समेत दीगर से रिकवरी की गई। टैक्स नादिहिंदगान को अदायगियों के लिए नोटिस भी भिजवाए गए। अदायगी न करने और नोटिस की अदम तामील पर कानून के मुताबिक रिकवरी की गई। चिन्योट में यूरिया खाद की किल्लत बरकरार, काश्तकार रुल गए, दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर आसिम जावेद ने यूरिया खाद की फराहमी के लिए नया फार्मूला नाफिज कर दिया। चिन्योट में यूरिया खाद का बहरान बदस्तूर बरकरार है। काश्तकार खाद के हसूल के लिए दरबदर होने लगे, जबकि इंतजामिया खाद की मुकर्ररा करदा नरखों पर फराहमी यकीनी बनाने में नाकाम दिखाई दे रही है। काश्तकार कहते हैं सुबह से पैसे हाथ में लिए धक्के खा रहे हैं। यूरिया का रेट 1768 रुपए है, मगर महकमा ज़राअत के अफसरान मनपसंद अफराद को 2000 रुपए में पर्ची बनाकर दे रहे हैं, जबकि ब्लैक में 2600 रुपए तक फरोख्त की जा रही है। जिला इंतजामिया ने यूरिया खाद की फरोख्त के लिए नया फार्मूला नाफिज कर दिया। डिप्टी कमिश्नर आसिम जावेद ने खाद डीलर और महकमा ज़राअत के के इजलास के बाद फैसला किया। उनका कहना था यूरिया खाद की 3 बोरियां खरीदने पर 1 DAP या कोई भी दूसरी खाद खरीदना पड़ेगी। मकसद यूरिया के साथ साथ दूसरी खादों की फरोख्त में भी तवाज़ुन लाना है। यूरिया जो है वो क्योंकि उसकी डिमांड ज्यादा है तो वही सिर्फ निकल रही है, तो हमने ये फैसला किया है कि 3 यूरिया के साथ 1 दूसरी खाद भी जो है उनको लेनी पड़ेगी ताकि डीलर्स का भी नुकसान नहीं हो। डिप्टी कमिश्नर आसिम जावेद का कहना था 10 बोरी यूरिया खाद खरीदने वाले को ज़ेरे काश्त रकबा का सबूत देना होगा। खाद की दूसरे शहरों में मुंतकिली और फरोख्त पर पाबंदी होगी। किसानों ने खाद की मुकर्रर करदा नरखों पर फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब और अलीजेब के साथ बाबर मुनीर और वकार घुम्मन, सिटी 41 चिन्योट। अहमदपुर सियाल में महकमा सेहत की मुबैना गफलत से बस्ती सियालकोट के मकीन अताइयों के सपुर्द वाहिद डिस्पेंसरी 5 साल से गैर फाल। अहमदपुर सियाल में महकमा सेहत की मुबैना गफलत ने बस्ती सियालकोट के रिहायशियों को अताइयों के सपुर्द कर दिया। बस्ती सियालकोट के हजारों अफराद पर मुश्तमिल आबादी के लिए बनाई जाने वाली वाहिद डिस्पेंसरी 5 साल से गैर फाल है, जिसके बायस अहले इलाका सरापा एहतजाज है। अहले इलाका का एहतजाज करते हुए कहना था कि डिस्पेंसरी का सामान गायब हो चुका। डिस्पेंसरी भूत बंगले का मंजर पेश कर रही है। इमारत में नशेइयों का राज है, जबकि बाद सर अफराद ने जानवर भी बांध दिए हैं। सीवरेज के पानी से डिस्पेंसरी सेहत मरकज की बजाय वबा का मरकज बन चुका। यहाँ पर लोग जानवर बांध रहे हैं, यहाँ पर जो नशई वगैरह हजरात हैं वो यहाँ पे बैठकर नशा करते हैं, और ये एक हमारे लिए ड्राउनी बिल्डिंग बन चुकी है। इलाका मकीनों का कहना था डिस्पेंसरी बंद होने से दूर दराज इलाकों या प्राइवेट क्लिनिक्स का रुख करना पड़ता है। गंदगी के ढेर लगने से ताफुन फैल रहा है। डिस्पेंसरी ये फाल किया जाए, यहाँ पे कूड़े क्रिकेट का ढेर लगे हुए हैं, मकामी आबादी में ताफुन फैल रहा है। CEO है डॉक्टर मंजूर हुसैन का कहना था MO समेत दीगर अमला तैनात कर रहे हैं और जल्द डिस्पेंसरी को फाल कर दिया जाएगा। डिस्पेंसरी फाल होने से अवाम को सेहत की मुफ्त सहूलियात मैसर होंगी और अतायत का खात्मा होगा। कैमरा टीम के साथ अमार यासिर, सिटी 41 अहमदपुर सियाल। एहलकारों की बेहतरीन कारकर्दगी के लिए RPO फैसलाबाद कोषां रीजनल पुलिस ऑफिसर इमरान महमूद ने अर्दल रूम का इनेकाद किया। RPO इमरान महमूद ने 25 एहलकारों की अपीलें मंजूर करते हुए कारकर्दगी बेहतर करने की हिदायत की, जबकि शोकास नोटिस की समाअत के लिए पेश होने वाले 4 एहलकारों को संशोर और 1 की 2 साला तरक्की रोक ली गई। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में लाहौर डाउन टाउन के सरकारी प्लॉट्स की नीलामी के हवाले से इजलास हुआ। कमिश्नर फैसलाबाद जाहिद हुसैन ने शिरकत की। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में लाहौर डाउन टाउन में सरकारी प्लाट्स की नीलामी के हवाले से इजलास मुनक्किद हुआ। कमिश्नर फैसलाबाद जाहिद हुसैन ने हुसूसी शिरकत की। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स आतिफ मुनीर ने लाहौर में पहला डाउन टाउन बनने पर मुंतजमीन को मुबारकबाद पेश की। आप गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन में रहेगी। इसी तरह इंटरनेशनल हॉस्पिटल के लिए, इंटरनेशनल होटल के लिए और फैसलाबाद में इंटरनेशनल थीम पार्क के लिए ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने
جو بزنس کمیونٹی کی ڈیمانڈ تھی اس پر انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ یہ چیزیں انشاءاللہ آپ کے دور میں وہ پوری کریں گے۔ سینٹرل بورڈ آف ڈائریکٹر عہدیداران نے ڈاؤن ٹاؤن منصوبے پر روشنی ڈالی اور لاہور شہر کے پھیلاؤ کو ختم کر کے امارات کا ایک نیا سلسلہ شروع کرنے کے حکومتی پلان کے بارے میں آگاہی دی گئی۔ اس دوران کمشنر فیصل آباد نے بھی صنعتکاروں کو ماسٹر پلان تقریباً مکمل ہو جانے کی خوشخبری سنائی ہے۔ 804 اسکوائر کلومیٹر پہ مشتمل آپ کا ایک بڑا جامع ماسٹر پلان بنا کے ہم نے اس کو ٹیبل کر دینا ہے اب انشاءاللہ آئندہ چند دنوں میں، اور یہ اس بات کا اعتراف بھی ہوگا کہ فیصل آباد کی صنعتی ترقی اور اس کے پوٹینشیل کو ملوز خاطر رکھا گیا ہے پلاننگ کرتے وقت۔ اجلاس میں ڈرائی پورٹ چیئرمین مزمل سلطان، نائب صدر چیمبر آف کامرس رانا فیاض، ایگزیکٹو ممبر غلام حسین اور دیگر عہدیداران بھی موجود تھے۔ کیمرامین عقیل نقاش کے ساتھ شیراز بٹ، فیصل آباد۔ فیصل آباد ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پیکج کے تحت واسا کے ترقیاتی کام جاری۔ وائس چیئرمین واسا شیخ شاہ جاوید نے جھنگ روڈ پر ڈالی جانے والی نئی سیوریج لائن کا جائزہ لیا۔ گلبرگ کے علاقوں میں سیوریج مسائل سے نمٹنے کے لیے نئی لائن ڈالنے کی نوید بھی سنا دی۔ ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پیکج کے تحت جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لینے کے لیے وائس چیئرمین واسا شیخ شاہ جاوید نے جھنگ روڈ موٹر مارکیٹ کا دورہ کیا۔ IRMNCH ملازمین کا احتجاج رنگ لے آیا۔ حکومت نے 6 ماہ کے بقایا جات ادا کرنے کا اعلان کر دیا۔ ڈسٹرکٹ کوارڈینیٹر IRMNCH پروگرام ڈاکٹر زاہد یونس کہتے ہیں اس میں بنیادی مرکز صحت اور دیہی مرکز صحت میں تعینات ملازمین شامل ہیں۔ IRMNCH پروگرام میں تعینات LHVs آیا اور سیکیورٹی گارڈز کے لیے اچھی خبر، حکومت کی جانب سے 6 ماہ کے بقایا جات جاری کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ کمالیہ میں جشن ولادت باسعادت حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کچی بستی میں محمود الحسن عابد کی جانب سے جشن کا اہتمام کیا گیا، کیک بھی کاٹا گیا۔ بات کرتے ہیں رضوان خان سے۔ جی رضوان، آج بالکل کمالیہ میں مخدوم حسن رضا کی جانب سے جشن ولادت حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے موقع پر کیک کاٹنے کی تقریب کا اہتمام کیا گیا، جشن کا بھی اہتمام کیا۔ خصوصی طور پر یہاں پر سرکار سید عابد علی شاہ حسنی الگیلانی نے شرکت کی ہے، بات بھی کریں گے۔ سر بتائیے گا، مبارک دن ہے آج، کیا کہیں گے؟ آپ نے کیک بھی کاٹا ہے آج مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے یوم ولادت کے سلسلے میں یہاں یہ ہو رہا ہے پروگرام، تو ظاہر ہے یہ خوشیوں کا دن ہے، اور سب حضرات کو مومنین کو مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ مومنین کو اللہ تعالیٰ جناب علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان پہ خصوصی رحمت اور خصوصی کرم فرمائے، رحمت اور برکتوں کا نزول فرمائے، اور اسی طرح سرکار کا میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج بالکل فرد کاظمی سے بھی بات کریں گے۔ محسن نقوی صاحب رضوان اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ۔